बात शुरू करते हैं एक सीईओ से। सीईओ जो कि एमईटीएल ग्रुप के इतने बड़े पद पे हैं, और जैसा कि हमें पता चला है कि आप की कंपनी 11 देशों में काम करती है। पहले तो कंपनी क्या है और इसका विजन क्या है और आप उस तक कैसे पहुंचे, और एज ए सीईओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे देखेंगे जो अपने फ्यूचर में सीईओ बनने की इच्छा रखते हैं, तो आप सीईओ कैसे बन गए और वहां तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है आपकी बारी? पहले तो बहुत धन्यवाद मनीषा जी आपका इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद। आप एक बहुत ही नेक काम कर रही हैं विथ पर्पस, विथ नोबल पर्पस। और जैसा आपने सवाल पूछा मुझसे, मेरा नाम इंद्र भुवन सिंह है एंड आई एम वर्किंग एज ए सीईओ ग्रुप ऑपरेशन विथ METL ग्रुप। METL stands for Mohammed Enterprise Tanzania Limited. It is one of the largest conglomerate and diversified group in Tanzania and entire East Africa. We operate in 11 African countries like Mozambique, Malawi, Zambia, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Congo, Ethiopia, and South Africa. And vision and mission is very clear. We are trying to give world-class services and products to our end users. Those customers can afford our product quality and services. And in a nutshell, I can say the broad picture of the company is touching your lives every day, everywhere. Okay. So when you start your day from morning till evening going to your bed, whatever things you are using in your daily life, we are in everything. From toothpaste to carbonated soft drink, cold drinks, juices, edible oil, palm oil, this spaghetti, margarine, this sugar, rice. We are importing fertilizers, export, import, this telecommunication, finance, agriculture, textiles. So that's our punchline of company. So हमें अभी सवाल गलत पूछ लिया। सवाल ये पूछना चाहिए था कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां आप नहीं हैं? हम सब में है। that's our bottom line, touching your lives every day, everywhere. In Swahili, and my boss nickname is Mr. Mo, M-O. So our all products and services are coming with the tagline M-O. M-O, Mo. And Mo is the nickname of Mr. Muhammad Devji, who is the owner of this company. So when they see Mo, it means symbol of trust, symbol of quality, symbol of reliability. Because this year we completed 50 years. We celebrated our golden jubilee. It's a 50 years old organization. 50 years, more than 50 years old organization. So that's our punchline. We are always trying to reach out to maximum people, and you feel very proud for us. It's also in this Indian origin. It's a fourth generation company, and they are basically from Gujarat, Kutch. Okay. And today we are giving employment more than 39,000 people, local employment in Tanzania. And we are the second largest employer after government of Tanzania in expected employment, like us. Okay. More than 1,000 people all across the group. We have more than 30 companies under this umbrella, METL. So it's a very, and contributing more than 4% to country GDP. So यदि आप में से कोई सीईओ बनना चाहता है और आप 40,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का मन रखते हैं, तो इस पॉडकास्ट में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत सारी बातें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। So as we had a conversation with CEO, now let's talk about Mr. Indra Bhuvan Singh as a person, because जब भी कोई भी व्यक्ति कहीं पहुंचता है जहां उनका सपना उन्हें ले जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में बदलाव लाती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट लाती हैं। सो एक तो भारत छोड़ के बाहर जाने का ज़रूरत क्यों पड़ा? दूसरा, क्या ज़िंदगी में कहीं कोई ऐसा मौका आया जब आपको ऐसा लगा कि काश ये हो जाता तो अच्छा होता, या ये भी मिला होता तो अच्छा होता, या ऐसा होता तो अच्छा होता? सो आई want to know about bits of those moments in your life. Okay. As a person, I am very go-getter personality. बहुत बिंदास जीता हूँ जीवन. I never regretted in my life. कोई रिग्रेट नहीं है मेरे कोई life. गलती नहीं कोई किया। गलती नहीं.
गलती अगर करो तो एक लेसन मैंने लाइफ में लिया है, गलती करो तो उससे सीख लो आप, बट वो रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, और रिग्रेट कभी पास में नहीं रखना। रिग्रेट पास में नहीं करना। हाँ। आई बिलीव इन कर्मा, प्योर कर्मा। जो मैं करूंगा वही मुझे मिलेगा। बिल्कुल। इफ आई डू गुड, गुड विल कम बैक। इफ आई डू बैड, बैड विल come back. What goes around, What goes around, come back around. That's very simple theorem. And I believe in full transparency. Very committed guy, very loyalty. And I want to, all people who are associated with my life, they should be happy with me. They should always feel I am taking care of those people. In my family also, in my profession also. And by God grace, till now, I'm enjoying my both life. In fact, I can say my both life, corporate life, means professional life, plus social life is balanced. That's very important. which is very important. In current scenario, everywhere there is there is a misbalancing. There is no proper coordination between social life and corporate life. Too much huge pressure, stress, blah blah. It's okay. If you're working somewhere, stress, pressure is the daily routine. But you should not surpass your own mental level where you become, frustrated, discouraged, and you feel like that. No. Now what I should do? And I think you should understand that what role you're playing right now. I mean, in the company, you're a CEO, but at your home, you're a father, you're a Father, husband. your husband, Yeah. your brother. Yeah. No, your responsibilities should be very crystal clear for you. Yeah. And before that, one thing I want to add here for your audience. The basic thing is that you must or you should be a good human being. अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप एक अच्छे फादर बनोगे, एक अच्छे ब्रदर बनोगे, एक अच्छे हस्बैंड बनोगे, एक अच्छे सीईओ बनोगे, एक अच्छे डायरेक्टर बनोगे, एक अच्छे एमडी बनोगे. द बेसिक क्वालिटी इज यू शुड हैव गुड अपब्रिंगिंग और एक अच्छे इंसान बनो आप. So, इससे बड़ी आपकी कुछ जिंदगी में अगर हम हमारे देखने वालों को बोलें तो आप जिंदगी में कभी भी करियर प्लान करते हैं तो सबसे पहला प्लानिंग होना चाहिए अच्छा इंसान बनने. अच्छा इंसान बनने. बिल्कुल सही बात है. उसके बाद आप कुछ भी प्लान उसके बाद कुछ भी प्लान करो आप. और एक चीज और है, लाइफ में कोई चीज फिक्स नहीं है. लाइफ में आप जैसे लेट मी टेल फॉर माय एग्जांपल, आई वाज स्टडीइंग फॉर एमबीबीएस. मैंने पढ़ाई की, कोचिंग भी किया, कोचिंग नहीं किया था, हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस लर्निंग समथिंग लाइक दैट. बन नहीं पाया, कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट थी. इट्स ओके. आई स्टार्टेड माय करियर 10/10. 10 के कमरे से मैंने अपने करियर लाइफ स्टार्ट किया है. और उस समय कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी घर में जिसकी वजह से मेडिकल नहीं कर पाया. फिर मैंने आई क्वालिफाइड फॉर ICRA, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. I got the Pune Agriculture College, from where I did my BSc Agriculture. Then I did my math. Then I got MBA in Agribusiness Management. तो लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि एक लड़का जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है उसका पूरा स्कोप ही बदल जाएगा. एंड टुडे आई एम सिटिंग हियर. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स मीन्स वन नाइट जर्नी. इट्स क्वाइट लॉन्ग जर्नी एंड प्रोसेस. बट वन थिंग इज दैट जो आपके जीवन में लिखा है उसको आप एक्सेप्ट करो और उसको एक्सेप्ट करके उस पर काम करो और उससे आगे बढ़ जाओ. अगर उस पर आप अफसोस करोगे तो उससे किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ आपका नुकसान है और आपके जो साथ लोग बैठे हैं उसका नुकसान है. क्योंकि आप डिस्करेज रहोगे, आप डिमोटिवेटेड रहोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो काम कब करोगे. और कई बार ऐसी चीजें और ऐसा समय आपको सिखाने के लिए भी आता है. आपको मजबूत करने के लिए आता है. बिल्कुल सही बात. नहीं, अगर आप मुझसे पूछोगे, आई एम वेरी सेटिस्फाइड. आज मुझको, मैं लाइफ को हमेशा एक हर एक नए दिन के रूप में देखता हूँ. एवरी डे इज ए न्यू डे फॉर मी. आज मुझे मेरा टारगेट है, ये करना है, इस पे काम करके आगे निकल जाना है. हो गया, वेल डन. नहीं हुआ, क्या कमी रह गई, कहाँ पे हमारी मिसिंग पॉइंट्स है, उस पर आप वर्क करो और आगे बढ़ जाओ. एक अच्छे इंसान की आपको जो इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्समैन, इन टर्म्स ऑफ लीडर, ये करते हैं. ये पूरे जीवन ही जंग है. जो एक कहानी बोलते हैं जंगल में ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. एक नियम है जंगल का, जो लायन भी अपने बच्चों को सिखाता है कि एक एज के आने के बाद वो अपने बच्चों को अलग कर देता है. यू गो लर्न योर लाइफ बाय योरसेल्फ, अंडरस्टैंड द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, हाउ टू फाइट विद डे टू डे challenges, and when you become strong and enough, then you come back to her. So same thing applied for everyone, whether it's me, you or anyone.
जो नया राजा बनने के पहले उसको दुनिया में जाना होता जाना है पड़ता है, और एक साधारण जीवन जीना पड़ता है। पड़ता है, एक साधारण जीवन जीना पड़ता है। तो राजा बनना है तो हमको ये समझना जरूरी है कि अगर आप साधारण जीवन नहीं जिए तो राजा बनने का कोई मतलब नहीं है, या Definitely बन ही नहीं नहीं पाए। पाएंगे आप। क्यों? उसका कारण क्या है? राजा क्या है? राजा एक अथॉरिटी है जो पूरे राज्य को चलाता है, कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल कब कर पाएगा? जब उसके पास नॉलेज होगा, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके पास हर एक क्या बोलते हैं जो स्टेप बाय स्टेप जो डेवलपमेंट है उसका उसको तजुर्बा होगा, तभी वो एक अच्छा राजा बन सकता है। अब अगर देखते होंगे इतिहास के, अब जैसे हमारे रामायण है, महाभारत है, तो पुराने जमाने में जो जो राजा रामचंद्र जी थे वो वेश बदल के रात में पूरे राज्य का दौरा करते थे। इफ यू हर्ड इन द पास्ट कि कहीं किसी क्या कमी है, मेरे लोग जनता मेरे से खुश है या नहीं है। उनके अपने अपने गुप्तचर हुआ करते थे, अपने स्पाई, कि जो हर एक क्या बोलते हैं नुक एंड कॉर्नर पे जाते थे, बातें सुनते थे जनता की क्या चल रहा है उनके मन में। तो ये आपको आना पड़ेगा, आपको ग्राउंड पे इसको लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप वो समझ गए और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया तो यू आर द सक्सेसफुल लीडर, यू आर द सक्सेसफुल राजा, यू आर द सक्सेसफुल कोच, यू आर द सक्सेसफुल सीईओ। जैसे मैं भी अपने जीवन में, अपने करियर में जैसे मैंने अपनी करियर स्टार्ट की थी एज एएसएम, एरिया सेल्स ऑफिसर इन पुणे, फिर एएसएम से फिर एमबीए किया, फिर टेरिटरी मैनेजर बना, फिर आपको स्टेट हेड मिलता है, फिर नेशनल सेल्स हेड बनते हो। फिर नाइजीरिया की अपॉर्चुनिटी आई, 2010 में मैं नाइजीरिया गया और वहाँ पे एज ए ब्रांच मैनेजर ज्वाइन किया था। फिर ब्रांच मैनेजर आरएसएम प्रमोट हुआ, फिर आरएसएम से फिर नेशनल सेल्स हेड प्रमोट हुआ। तो आज मैं ये समझ पाता हूँ क्योंकि मैंने हर एक जीवन को जिया है। आज कोई बंदा या कोई जूनियर मेरे पास आता है तो आई कैन फील हिज प्रॉब्लम, हिज हिकअप्स, बिकॉज आई गॉन थ्रू दैट स्टेज। सो वो राजा वाली जो बात है ये पार्ट ऑफ लाइफ है। वी कैन नॉट बी हेलीकॉप्टर कैंडिडेट, नो, हेलीकॉप्टर कैंडिडेट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल एंड नॉट डिजायरेबल। इवन सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा वो, इज गोइंग टू कंप्लीटली कोलैप्स। ये किसी भी क्षेत्र में एप्लीकेबल है मैम, ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में हो या आपको इंजीनियरिंग में हो, ये किसी भी क्षेत्र में एप्लीकेबल है। हेलीकॉप्टर कैंडिडेट्स नहीं चला करते, आपको ग्राउंड पे बैटिंग करनी ही पड़ेगी, आपको पिच की रिदम को समझना पड़ेगा, आपको अपना पसीना बहाना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एक दिन में इमारतें, रोम का किला एक दिन नहीं बना है, नहीं बनता। सक्सेस नॉट ओवरनाइट जर्नी, संभव ही नहीं है। आपको ये यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ा है कि देखिए लोगों को लगता है कि यार सक्सेसफुल बंदा है, लोगों सक्सेस दिखता है बट उसके पीछे का पेन नहीं दिखता उनको। आज आई एम वर्किंग मोर देन 18 आवर्स, सालों की मेहनत है, सालों की मेहनत है। आज ये मैं 18 घंटे काम करता हूँ। आई स्टार्ट बाय डे फ्रॉम 6 o'clock, 12 बजे एक कंसिस्टेंसी के साथ जो काम मिला है उसको करना है विद फुल डेडिकेशन एंड डिवोशन। आपको ये रखना पड़ेगा। आज क्या किया, आगे के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, अपने आप खुले। एक हर एक इंसान का एक क्या बोलते हैं उसको, यूएसपी होता है हर एक प्रोडक्ट का, यूनिक फीचर। तो हर एक इंसान में भगवान एक क्वालिटी दिया है, हर एक इंसान में है, बट जरूरत क्या है उसको तराशने की, उसको एक्सप्लोर करने की, उसको आइडेंटिफाई करने की। सबके पास अपना ब्रेन है। लोगों में क्या होता है, कुछ लोग एक लेवल पे जाकर छोड़ देते हैं उसको, अरे अब होगा ही नहीं। क्यों छोड़ना नहीं है, उसको पकड़े रखो ना एक बार। उसको जितना मजबूती से पकड़ोगे, जितनी कंसिस्टेंसी के साथ पकड़ोगे और कमिटमेंट के साथ, उतना आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि किया गया काम कभी बर्बाद नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आगे आपको काम आता ही है। बिल्कुल, नेवर गोज इन वेन। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, नहीं जाता। आज नहीं कल आपको पे करेगा वो, लेकिन करेगा जरूर। विद्या कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है,